हेलो एवरीवन, PCS 2020 प्रीलियम एग्जाम वर्ल्ड हिस्ट्री सिर्फ ਇਹ 3 ਜਾਂ 4 ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਕਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚਾਹਨ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਿਫਾਲਟ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਫੇਲਿਅਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ऑप्ट कर सको कि दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ये 3 या 4 ਲੈਕਚਰਸ दे विल बी सफिशिएंट फॉर PCS प्री एंड एज आई प्रोमिस्ड ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ YouTube ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ठीक है जी, ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੌਡ ਇਵੈਂਟਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਕਰੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਇਵੈਂਟਸ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡੇਟ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਫਾਈਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਮਾਈਕਰੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਮੈਕਰੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਸੌਰੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੇਨਾਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਰੇਨਾਸਾਂ ਤੋਂ। ਰੇਨਾਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ। ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਫਲੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕੇਜ ਸਮਝਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਕੈਨ ਬੀ ਟੇਕਨ ਕੇਅਰ ਆਫ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਰੇਨਾਸਾਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਰਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਆਇਆ ਜਰਮਨੀ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ, ਰਾਈਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਰਿਨਾਸਾਂ। ਰਿਨਾਸਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਬਰਥ। ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਰੀਬਰਥ। ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਟਲੀ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਆਇਆ? ਰਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਜੋ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ, ਇਟ ਗॉट ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ। ਦੋ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਹੈ ਸੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟਸ हैं ये थोड़े प्रोग्रेसिव हो गए। प्रोग्रेसिव हो गए मतलब ये थोड़े जे मॉडर्नाइज हो गए, थोड़े जे लिबरल हो गए, राइट, थोड़े उदारवादी हो गए। सो रिनासां दे नाल साइंटिफिक थिंकिंग आई, थोड़ी साइंटिफिक थिंकिंग आई। आइडिया ऑफ ह्यूमनिज्म आया कि ਜਿਹੜਾ मैन है ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਇਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸੁਧਾਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਏ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਰਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚਰਚ ਹੈ ਇਸਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਰਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਊਂਟਰ ਰਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਕਾਊਂਟਰ ਰਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਰਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਚਰਚ ਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ ਦ ਈਵਿਲਸ ਆਫ ਦ ਚਰਚ। ਕਾਊਂਟਰ ਰਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਰਿਫਾਰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਰਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਮੰਨ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਫਾਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿ ਰਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਾਈ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਤੀ, ਤੇ ਰਿਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਾਊਂਟਰ ਰਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦ ਓਨਲੀ ਬਿਟ ਆਫ ਰਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਕੁਡ ਬੀ ਵਿਟਨੈਸਡ ਵਾਸ ਥਰੂ ਕਾਊਂਟਰ ਰਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਊਂਟਰ ਰਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਰਿਫਾਰਮ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਫਾਈਨ। ਹੁਣ ਰਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕਾਊਂਟਰ ਰਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰੂਲਰ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਰੂਲਰਸ ਵੀ ਦੋ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਰੂਲਰਸ ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਣ ਗਈਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਾਰ, ਰਾਈਟ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਾਰ ਜੋ ਕਿ 30 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। 30 ਇਅਰਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਾਰ ਜੋ ਕਿ 1648 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ 1648 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਹਰ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 1648 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੀਸ ਆਫ ਵੈਸਟਫੇਲੀਆ। ਪੀਸ ਆਫ ਵੈਸਟਫੇਲੀਆ 1648 ਜੋ ਕਿ 30 ਇਅਰਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪੀਸ ਆਫ ਵੈਸਟਫੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਡਿਸਾਈਡ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜਾ ਹੈ
जो राजा का धर्म है, जे राजा कैथलिक है या जे राजा प्रोटेस्टेंट है, तो जिहड़ी उस राजा की प्रजा है, सबजैक्ट पॉपूलेशन, ये प्रजा भी उही धर्म अपनाएगी। जे राजा कैथलिक है तो प्रजा भी कैथलिक है, जे राजा प्रोटेस्टेंट है तो प्रजा भी प्रोटेस्टेंट है। ये डिसीजन लिया गया। बट होया कि अल्टीमेटली पीस ऑफ वेस्टफेलिया नाल नेशन स्टेट या जिन्होंने असी मॉडर्न स्टेट कहते हैं ना, कि लोगों का एक धर्म है, लोगों की एक भाषा है, लोगों का एक तरह का अतीत है, लोगों का भविख वास्ते एक तरह का नज़रिया है। पीपल हैव कॉमन लैंगुएज, कॉमन कल्चर, दे हैव कॉमन पास्ट एंड दे हैव कॉमन एस्पिरेशंस फॉर द फ्यूचर। सो नेशन स्टेट का आइडिया इवॉल्व कर गया। बट होया की है कि राजा का धर्म ही लोगों का धर्म है, राइट। इसलिए असी ये कहते हैं कि हले सैकुलर स्टेट का आइडिया नहीं आया, राइट। सैकुलर स्टेट का आइडिया नहीं आया, बट नेशन स्टेट का आइडिया आ गया। सो रेनेसां इटली तो स्टार्ट होया, रिफॉर्मेशन जर्मनी तो स्टार्ट होया, मार्टिन लूथर ने शुरू किया। मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस तैयार किए, जिहदे बेसिस ते उन्हें चर्च नूं सुधारन का मौका दिता या कुछ चर्च दीयां बुराइयां साफ कीतियां, उजागर कीतियां, राइट। ही एक्सपोज द ईविल प्रैक्टिस ऑफ द चर्च थ्रू हिज 95 थीसिस। रेनेसां दे विच साइंटिफिक आइडियाज़ आए, ह्यूमनिज्म का आइडिया आया, रिफॉर्मेशन के नाल क्रिश्चियनिटी का डिवीजन होया, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, कैथोलिक कंजरवेटिव, प्रोटेस्टेंट्स प्रोग्रेसिव, नाल दी नाल काउंटर रिफॉर्मेशन होया। हुण इहदा रिजल्ट होया रिलीजीअस वॉर्स। इन्हां रिलीजीअस वॉर्स जिहड़ियां सीगियां 30 ईयर तक चलियां। फाइनली 1648 दे विच पीस ऑफ वेस्टफेलिया साइन किया गया, जिहदे नाल नेशन स्टेट तो इमर्ज कर गई, बट सैकुलर स्टेट हले इमर्ज नहीं हुई। इत्थे तक एक फ्लो सीगा ईवेंट्स का जो तुसी समझना है। हुण अगले ईवेंट ते चलते हैं। रेनेसां रिफॉर्मेशन, 2 ईवेंट असी समझ ले, नाल रिलीजीअस वॉर समझ लिया एंड ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया या पीस ऑफ वेस्टफेलिया समझ लिया, ठीक है। हुण अगला ईवेंट है जिहड़ा इंपॉर्टेंट, वो है एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट, लोगों नूं ज्ञान की प्राप्ति हो गई, एनलाइटनमेंट हो गया, राइट। हुण ये होया किदां और कित्थों शुरू होया? ये सब तो पहला इंग्लैंड तो शुरू होंदा है एनलाइटनमेंट, राइट। एनलाइटनमेंट और लिबरलिज्म ये ऑलमोस्ट थोड़ा पैरलर चलने हैं। हुण जिद्दां ही एनलाइटनमेंट आंदा है, नाल ही लिबरलिज्म का जिहड़ा आइडिया, जो आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म है, उदारवाद की जिहड़ी नीति है, वो नाल दी नाल ही पॉपुलर होनी शुरू हो गई, राइट। उदारवाद का जिहड़ा सिद्धांत है। हुण इंग्लैंड दे विच मेन राइटर जिहड़े सब तो पहला आंदे हैं, वो आंदे हैं थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स, और थॉमस हॉब्स की किताब है लिवायथन, राइट। थॉमस हॉब्स ने लिवायथन नाम की किताब लिखी। इन्हों ने एक ईवेंट विटनेस किया 1642 की सिविल वॉर। इंग्लैंड च हुई सिविल वॉर 1642 दे विच, राइट। और राजा का सर वटता गया, राजा का सर कलम करता गया, द किंग वॉज बिहेडिड। हुण थॉमस हॉब ने यह वेखण तो बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी लिखी पहली बार, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। जब तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी नहीं आई सी, तब तक ये मन्निया जाता सीगा कि जो रूलर्स हैं, रूलर्स हैव डिवाइन राइट्स, राजियां कोल देवीय अधिकार ने, राजे रब वकन है। जेम्स कहता सी इंग्लैंड का, किंग्स आर द ब्रीदिंग इमेजिज ऑफ गॉड अपॉन अर्थ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ बहुत सारिया इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स नाम ਤੁਹਾਨੂੰ मैं माइक्रो एनालिसिस करता अगले 2 या 3 ਲੈਕਚਰਸ करावांगा। ਅੱਜ एक बार आप पूरी हिस्टरी का फ्लो पढ़ लेंगे, उन्होंने चंगी तरह समझ लेंगे, ठीक है। सो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थॉमस हॉब्स ने लिवायथन नाम की किताब दी, जिहदे च उन्हें की कहा कि जो असीं मानते सी ना कि रूलर्स हैव डिवाइन राइट्स, राजा रब है, ये गलत है। उन्हें कहा यार कि जिहड़ी स्टेट है, स्टेट इज़ अ मैन मेड इंस्टीट्यूशन, मैन मेड इंस्टीट्यूशन है स्टेट, इंसान ने खुद बनाई है। क्यों बनाई? नाउ व्हाट हॉब्स सेज, आदमी कोल नैचुरल राइट्स सी, नैचुरल राइट्स कित्थे सीगे? इन प्री स्टेट, स्टेट बनन तो पहला प्री स्टेट, स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर एक ना काइंड ऑफ हाइपोथेटिकल सोसाइटी की गल कर लो, हाइपोथेटिकल काल्पनिक जी, कि कोई स्टेट नहीं सी, असी प्रकृतिक वे अपने तरीके नाल रह रहे सीगे, स्टेट ऑफ नेचर सी। उस स्टेट ऑफ नेचर दे विच आदमी कोल कुछ नैचुरल राइट सी,
और उन्होंने राइट्स की प्रिजर्वेशन वास्ते प्रोटैक्शन वास्ते ताकि मेरे राइट्स मेरे तो कोई खोए ना, उसलिए इंसान ने अपने आप आपस मिलके लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो एक स्टेट नाम की इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर ली कि हुण ये स्टेट है, इस स्टेट के ये रूलर होणगे या ये मैनेजर्स होणगे, वो साडी लाइफ नू ईजीली मैनेज करने वास्ते रूल्स एंड रेगूलेशनस बनाएंगे। राइट। सो पहली बार किसी इंसान ने दसिया कि राजे जड़े हैं रब का अवतार नहीं, मैन मेड इंस्टीट्यूशन है। सो काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक आइडिया ओरिजिनेट होने का स्कोप क्रिएट हो गया कि लोग अपना राजा आप चुनते हैं, अपने आप बनाते हैं अपनी मर्जी नाल। ठीक है, इट्स द विल ऑफ द पीपल दैट क्रिएट द स्टेट एंड द विल इज नॉट जस्ट टू क्रिएट स्टेट, इट इज़ टू प्रिजर्व द नैचुरल राइट्स। राइट। तो पहला सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी टॉमस हॉब्स ने लिवाइथन नाम की किताब दे विच। फिर दूजा भी राइटर जिहड़ा आया वो सी जॉन लॉक। जॉन लॉक भी इंग्लैंड का ही राइटर है। राइट। जॉन लॉक ने किताब लिखी टू ट्रीटिस ऑन सिविल गवर्नमेंट, टू ट्रीटिस ऑन सिविल गवर्नमेंट। हुण जॉन लॉक ने ना ब्रिटेन दे विच 1688 दे विच होया सी ग्लोरीअस रेवोल्यूशन, ग्लोरीअस रेवोल्यूशन। ठीक है, इन्हें देखा ग्लोरीअस रेवोल्यूशन जो 1642 सिविल वॉर सी, इहदे विच चार्ल्स नाम का राजा इनवॉल्व सी, इहदे विच जेम्स नाम का राजा इनवॉल्व सी। राइट। ग्लोरीअस रेवोल्यूशन नू ब्लडलैस रेवोल्यूशन भी कहते हैं। राइट। इहदे विच राजा का सर नहीं वड़ना पिया, राजा नू मारना नहीं पिया, द किंग वॉज नॉट बिहेडिड। इत्थे राजा ने लोगों की गल मन के अपनी गद्दी आप ही छड्डती। राइट। जदों राजा ने अपनी मर्जी नाल गद्दी छड्डती और लोगों के कहण ते इस जेम्स की भैन जो सी ना मैरी, मैरी वॉज मैरिड टू विलियम ऑफ ऑरेंज, विलियम ऑफ ऑरेंज जोड़ा कि हॉलैंड दा राजा सी। इन्हां नूं बुला लिया गया कि मैरी एंड विलियम ऑफ ऑरेंज ये आकर इंग्लैंड ते भी राज करनगे। ठीक है, इंग्लैंड ते राज हुण राजे की भैन ते जीजा करनगे, राजा अपने आप पिछे हट जाए। तो इस ग्लोरीअस रेवोल्यूशन नूं देख के जो जॉन लॉक है उन्हें एक किताब लिखी जिहदे च उन्हें एक बार फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की गल की, बट इस बार उन्हें इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी नूं थोड़ा जिहा होर इलैबोरेट किया। पहले तो उन्हें दसिया कि नैचुरल राइट्स की हैं। उन्हें बोलिया नैचुरल राइट्स हैं राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। ये तीन साडे नैचुरल राइट्स हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। फाइन। उन्हें बोलिया ये तीन नैचुरल राइट्स हैं जिन्हां दी प्रिजर्वेशन वास्ते असी स्टेट बनाते हाँ। फिर उन्हें नाल की बोलिया कि जदों असी स्टेट बनाते हैं उस स्टेट की ओबलीगेशन बनाते हैं कि उन्हें साडे राइट्स नूं प्रोटैक्ट करना है। द स्टेट इज़ ओबलाइज टू प्रोटैक्ट आवर राइट्स, टू प्रिजर्व द राइट्स। तो जे स्टेट ही फेल कर जाए राइट्स नूं प्रोटैक्ट या प्रिजर्व करने दी, फिर जॉन लॉक ने बोलिया पीपल हैव राइट टू रिवोल्ट, राइट टू रिवोल्ट। और इन्हें नाल ये भी कहा ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल, ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल। जॉन लॉक ने अपनी किताब च लिखिया। हुण जॉन लॉक ने इंग्लैंड दे विच तां रेवोल्यूशन होने तो बाद ये गल्लां लिखियां ना ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल, पीपल हैव राइट टू रिवोल्ट, पर इहदियां ये गल्लां अगे जाकर अमरीका के लोगों को बहुत प्रभाव करदियां, लोगों ते बहुत प्रभाव पांदियां और उस करके अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुंदी है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये साडा अगला टॉपिक है। मैं बोर्ड साफ करके यदी डिटेल लिखदा। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुंदी है किस दियां गल्लां पढ़ के? जॉन लॉक दियां। इसलिए जॉन लॉक नूं की बोलते हैं? फादर ऑफ या इंटलैक्चुअल फादर ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन, इंटलैक्चुअल फादर ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। राइट। जॉन लॉक दियां गल्लां सुन के हुण अमेरिका के लोग बगावत करनगे इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक है। सो सब तो पहले होया रेनेसां, रेनेसां तो बाद होया रिफॉर्मेशन, फिर होया काउंटर रिफॉर्मेशन, फिर उस तो बाद 30 ईयर रिलीजियस वॉर्स, फिर पीस ऑफ वेस्टफेलिया जिहदे नाल नेशन स्टेट इमर्ज कर गई एंड बट सैकुलर स्टेट का आइडिया नहीं आया। हाउएवर इस तो बाद फिर इंग्लैंड तो शुरू होया एनलाइटनमेंट का दौर। जो एनलाइटनमेंट इंग्लैंड तो शुरू होया ਉਹਦੀ ਕਲਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਬੈਸਟ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ठीक है। फ्रांस दे विच एनलाइटनमेंट बेस्ट आया। हुण फ्रांस दे विच 3 मेन राइटर्स हैं जिन्हां ने एनलाइटनमेंट के आइडिया नूं बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया। सब तो पहला नाम आता है मोंटेस्क्यू, MONTESQUIEU, MONTESQUIEU। दूसरा है वोल्टायर और तीसरा है रूशो, ROUSSEAU। ये 3 मेन फ्रांस के राइटर्स हैं, राइट। मोंटेस्क्यू की जिहड़ी किताब है उसका नाम है स्पिरिट ऑफ लॉ, स्पिरिट ऑफ लॉज। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇਹ 3 ਅਲੱਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਦਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਚੈੱਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏ, ਰਾਈਟ। ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਜਾਂ ਚੈੱਕਸ ਐਂਡ बैलेंस, ये एक सिस्टम होना चाहिए जो मोंटेस्क्यू ने दिता। और मोंटेस्क्यू ने डेमोक्रेसी के ऊपर भी बहुत जोर पाया। ये कहता जी एब्सोल्यूट मोनार्की ही सारे प्रॉब्लम्स की जड़ होंदी है, एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं होनी चाहिए। फिर वोल्टेयर की किताब सी कैंडिड, मेन किताब कैंडिड, जिदे विच वोल्टेयर ने बोलिया कि एक तो चर्च जिहड़ी है ना, चर्च इज़ डैन ऑफ सुपरस्टिशंस, सारियां बुराइयां, सारे अंधविश्वास जिहड़े हैं ये चर्च दे विच ही हैं और चर्च ने लोगों की तरक्की रोकी हुई है। फाइन। दूजी चीज़ इन्हें बोलिया आई एग्री नॉट विद वट यू से, आई एग्री नॉट विद वट यू से बट आई विल डाई टू डिफेंड यूअर राइट टू से। जो बई तू कहना ना मैनू तेरी गल तो पसंद नहीं आई, बट तेरे को फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ना, मैं उसकी रिस्पैक्ट कराँगा, मर जावां पर तेनू बोलन की आज़ादी मना नहीं कराँगा, राइट। दैट मीनस इन्हें सिविल राइट्स या सिविल लिबर्टीज़ बारे गल की कि लोगों को बोलन की आज़ादी होए, फ्रीडम दी जाए, राइट। फिर आंदा है वोल्टायर, रूशो, आई एम सॉरी, फिर आते हैं रूशो, जैन जैकस रूशो। और जो रूशो है इन्हां दी किताब सी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और इन्हां ने भी इहदे विच सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दे उपर ही अगे लिखिया, जो कि पहला हॉब्स ते लॉक ने किया, हुण रूशो ने उन्होंने होर इलैबोरेट किया। बट रूशो जो है ना ये एनलाइटनमेंट की एज दे विच रोमैंटिसिज्म का राइटर है, रोमैंटिसिज्म का राइटर है। रोमैंटिसिज्म की है, स्कैप्टिसिज्म की है, ये आपां माइक्रो वाले लैक्चर्स दे विच करांगे। हले तक तुसीं ये याद रखना है कि जो रूशो है वो रोमैंटिसिज्म का मेन राइटर है। और जो रूशो ने मेन आइडिया दिता वो है डायरैक्ट डेमोक्रेसी का आइडिया, राइट, या पॉपुलर सोवरेनिटी का आइडिया, पॉपुलर सोवरेनिटी का आइडिया, डायरैक्ट डेमोक्रेसी, पॉपुलर सोवरेनिटी, या एक वर्ड याद रखना तुसी, इन्होंने दिता आइडिया ऑफ जर्नल विल, ठीक है। वट इज़ पॉपुलर सोवरेनिटी? पॉपुलर सोवरेनिटी हुंदी है जिहदे च असीं ये कहने आ कि जो आम लोग हैं, जिहड़े आम लोग हैं, जिद्दां असीं वी द पीपल ऑफ इंडिया, असीं सरकार चुनते हैं तो असली पावर किहदे हत्थ च है? साडे हत्थ। पॉपुलर सोवरन हुंदे हैं लोग जिहड़े सरकार बनाते हैं। हर 5 साल बाद या 4 साल बाद जो भी इलैक्शन हो, जिहड़े लोग वोट पा के सरकार बनान, असली सोवरेनिटी तो उन्होंने हत्थ है, ठीक है। एक ना राइटर है A.V. डाइसी, A.V. डाइसी ने कहा बिहाइंड द सोवरन, इस लाइन नूं सुन लो ध्यान नाल, हो सकता है पेपर च आ भी जाए। A.V. डाइसी बहुत पॉपुलर नाम है लीगल टर्मिनोलॉजीज के विच। A.V. डाइसी क्या बोलते हैं? बिहाइंड द सोवरन whom the lawyers recognize, जिन्हों विशेष करके ना वकीलों को समझ आता कि देखो जी सरकार कौन चला रहा, प्रधानमंत्री है कि प्रेजिडेंट है, पार्लीमेंट है, पर्सन है कि इंस्टीट्यूशन है। बिहाइंड द सॉवरन whom the lawyers recognize there is another sovereign, right, there is another sovereign to whom the former must bow, कि जिहड़ा सानूं लगदा ना असली मालिक है सरकार है, वो इस पॉपुलर सोवरन के अगे झुकते हैं कि हर 5वें साल 4थे साल कि सानू वोट पा दो, तां ही सानू ये सोवरेनिटी की जिहड़ी पावर है ये साडे हाथ आऊगी। सो पॉपुलर सोवरेनिटी का आइडिया जो है वो रूशो ने बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया, ठीक जी।
ਜਨਰਲ ਵਿਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਰਾਈਟਰਸ ਸੀਗੇ, ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਰਾਈਟਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਫਰੀडम ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਰੂਸ਼ੋ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ, ਰਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਨ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ 3 thinkers of France ਔਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਇਵੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਫਟਰ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ। ਇੱਥੇ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨ ਮੇਡ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬਣਨ ਦਾ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਡਨ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਨ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਅਮਰੀਕਨ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਜੋ ਕਿ 1776 4th ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, 4th ਜੁਲਾਈ 1776। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੱਭਿਆ ਕਿੰਨੇ, ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੋਜੈਸ਼ਨਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 13 ਕਲੋਨੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਾਈਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ 13 ਕਲੋਨੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਹੀ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਸੈਲਿਊਟਰੀ ਨਿਗਲੈਕਟ। ਸੈਲਿਊਟਰੀ ਨਿਗਲੈਕਟ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਿਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 13 ਦੀਆਂ 13 ਕਲੋਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰਸ ਦੀ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 1750 ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ 13 ਦੀਆਂ 13 ਕਲੋਨੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਲੋਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਥੋੜੇ ਮੈਚੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਫਾਈਨ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਮੈਚੋਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆਪ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਮੈਚੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲੀ ਵੀ ਮੈਚੋਰ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲੀ ਮੈਚੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਕਾਸਮੋਪੋਲੀਟੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਆ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਈਟ। ਥੋੜੇ ਸੋਸ਼ਲੀ ਮੈਚੋਰ ਸੀ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਲਿਬਰਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਚੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 7 years ਵਾਰ। ਯੂਰਪ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ 7 year ਵਾਰ ਹੋਈ 1756 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 63 ਤੱਕ। ਇਸ 7 years ਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ 7 years ਵਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਐਂਡ ਫਰਾਂਸ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੜ ਪਏ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਲੜੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ 3rd ਕਰਨਾਟਿਕ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 3rd ਕਰਨਾਟਿਕ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੜ ਪਏ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੜ ਪਏ ਤੇ ਲੱਕੀਲੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਿੱਤਿਆ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਿੱਤਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਡਨ।
ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਵੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਵੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਇਸ 7 ਈਅਰ ਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸਾ ਪੂਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਵਾਂਗਾ, ਪੇਪਰ ਐਕਟ, ਕਰੰਸੀ ਐਕਟ, ਕੁਆਟਰਿੰਗ ਐਕਟ, ਦਿਸ ਐਕਟ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਏ, ਰਾਈਟ, ਨਿਊ ਟੈਕਸਿਸ ਵਰ ਇੰਪੋਜ਼। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਮੈਚੋਰ ਸੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ, ਸੋਸ਼ਲੀ ਵੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਮੈਚੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਨ ਲੌਕ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਲਿਖਵਾਵਾਂਗਾ, ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਟਾਮਸ ਪੇਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਉਂਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ। ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਮੈਚੋਰ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ, ਸੋਸ਼ਲੀ ਔਰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਮੈਚੋਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਯਾਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠਣ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬਹਿ ਕੇ ਟੈਕਸ ਲਾਣਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਲੋਗਨ ਆ ਗਿਆ, ਨੋ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਨੋ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ। ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੇ ਸਲੋਗਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਤਾ, ਨੋ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਤੇ 13 ਦੀਆਂ 13 ਕਲੋਨੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਪੜਾਉਂਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੋਸਟਨ ਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, 13 ਦੀਆਂ 13 ਕਲੋਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 13 ਕਲੋਨੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਅਮਰੀਕਨ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਾਤਾ, ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੂਈ 16ਵਾਂ, ਲੂਈ 16, ਲੂਈ 16ਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਕਢਾਤਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਢਾਤਾ, ਰਾਈਟ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਇਫ ਆਈ ਹੈਲਪ ਦਾ ਅਮਰੀਕਨਸ ਟੂ ਫਾਈਟ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਯਾਰ ਬਦਲਾ ਪੂਰਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਢਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਢਾ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ, ਪੈਸਾ, ਹਥਿਆਰ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੜੋ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੀ ਹੈਲਪ। ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਫਰਾਂਸ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੇ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲੱਗ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਲੈਡ ਅਮਰੀਕਨ ਆਰਮੀ defeated the British army led by Lord Cornwallis and finally 1783 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਸਾਈਨ ਹੋਈ। ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਸਾਈਨ ਹੋਈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਬਿਕੇਮ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ। ਜਦ ਲਿਖਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੋਲਟਾਇਰ, ਮੌਂਟੈਸਕ ਤੇ ਰੂਸ਼ੋ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗੇ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਏ, ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਹੋਣ, ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੋਏ, ਰਾਈਟ, ਪੋਪੂਲਰ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਜਰਸ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਬਣਾਤਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਿਆਏ, ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟਿਡ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੀਡਮਸ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸੋਲਜਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ, ਫਰਾਂਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਜਦ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ 1783 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 2-3 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਰਸ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ,
राइट। डेमोक्रेसी आ जाएगी, आम जनता अपने राजे आप चुनिया करेगी और कोई भी राजा ਤਾਂ ਉਮਰ ਰਾਜਾ नहीं रहेगा, टाइम फिक्स होया करूगा, लोगों को ਗਰੰਟਿਡ ਰਾਈਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸੋਲਜਰਸ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ 1789 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਸੀਗਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ 3 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਸੀ। 3 ਸਟੇਟਸ, 3 ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 3 ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਲਰਜੀ, ਚਰਚ ਦੇ ਅਫਸਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀ ਨੋਬਿਲਿਟੀ, ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਵਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਕਾਮਨਰਸ, ਆਮ ਜਨਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਲੋਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਕਲਾਸ। ਰਾਈਟ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਈਟਸ ਹੋਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਇਹ ਰਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਧਿਕਾਰ। ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਸੀ, ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਔਰ ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 2% ਹੈ ਔਰ ਇਹ 98% ਹੈ ਕਾਮਨਰਸ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ हैं 2% ਲੋਕ, ਸਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹਿੰਦੇ हैं ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਦੇ 98% ਲੋਕ। ਇसी ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਰਚੈਂਟਸ ਐਂਡ ट्रेडर्स हैं, ਉਹ ਰਿਚ हैं। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ हैं, ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ हैं। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਚ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਰਾਜੇ, ਐਲੀਟ, ਰॉयल, ਜਾਂ ਤਾਂ रॉयल है या बिल्कुल नीचे कॉमनर है। विच ਜਿਹੜੀ मिडिल क्लास है वो ठीक ठाक अमीर लोग हैं, अमीर हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटैलीजेंट हैं, इसलिए आप वर्ड यूज़ करते हैं मिडिल क्लास इंटैलेक्चुअल्स या मिडिल क्लास इंटैलीजेंसिया। ठीक है। हुण ये जिहड़ी मिडिल क्लास है ये एजुकेटेड है, अवेकनड है, ये अपने लिए राइट्स चाहती है या ये चाहती है अपने लिए इक्वैलिटी का स्टेटस, या ये चाहते हैं कि समाज दे विच सारे बराबर होण, सारिਆਂ 'ਚ भाईचारा होए। ठीक है। सबनों प्रॉपर लिबर्टी होए, सबनों पूरी आज़ादी मिले। राइट। फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्लोगन बन गया लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है। ये बन गया फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्लोगन। हुण राजा की कहता है कि जो नवा टैक्स लगना है वो सिर्फ इन्हां तो अप्रूवल लवांगे, इन्हां तो अप्रूवल नहीं लेना। जे अप्रूवल तिन्हां तो लेना है उसदे लई एक हुंदा सी इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट्स जनरल, जिहदे विच तीनों ग्रुप्स आके बैठन ते वोट पान, लेकिन तिन्हां कोल एक वोट है। हुण ये सिर्फ 98% लोगों के मुकाबले 2% लोग हैं। इधर 2% लोगों को 2 वोट हैं तो 98% को 1 वोट है। ये कह रहे जी सिस्टम ही गलत है, सानू की करो वन मैन वन वोट जैसा सिस्टम बना के दो कि इधर 98% वोटा हो, इधर 2% ही वोटा हो। राजा इस चीज़ वास्ते नहीं मानता, आम जनता गुस्सा खा जाती है, जिहदे नाल शुरू हुंदा है फ्रेंच रेवोल्यूशन। और इस गुस्से च ही जिहड़ा राजा सी लुई 16 उहदा सर वटता गया। द किंग वॉज गिलोटीन्ड अलॉन्ग विद हिज क्वीन। क्वीन कौन सी, मैरी एंटोनी। राइट। लोगों ने राजा का सिर वटता। हुण ये समझ ही नहीं आ रहा कि पावर किहदे हथ जाए, क्योंकि हले असीं अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखिया नहीं है, कोई सिस्टम बनया नहीं फ्रांस दे विच, ते एकदम तो ही फ्रांस दे विच जिहड़ी सी अराजकता फैल गई, अनारकी आ गई, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, कई तरह के क्लब बन गए। क्लब का मतलब है पोलिटिकल पार्टी, जकोबियन क्लब, ग्रेडोनिस्ट है। राइट। इदां बहुत सारे क्लब बने जिन्हां चों एक मेन सीगा जकोबियंस का क्लब। राइट। जिहदा लीडर सी रॉबेस्पियर। ये सारे नाम तुहानूं मैं कल लिखवाने, इंपॉर्टेंट नाम है। वील राइट ऑल दीज नेम्स इन द नैक्सट फ्यू लैक्चर्स, 2 और 3 लैक्चर्स। जकोबियन क्लब की जो पावर आई, इन्होंने शुरू करता बई रेन ऑफ टैरर।
ਕਤਲੇਆਮ ਹੀ ਮਚ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਤਲੇਆਮ ਮਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕਸ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਟਰਨਲੀ ਅਨਾਰਕੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀਰੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਨੈਪੋਲੀਅਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ। ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦਾ ਰਾਈਜ਼। ਫਿਰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਵਾਰਸ। ਇਹਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪ੍ਰਸ਼ੀਆ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਵਾਰਸ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਲੀਸ਼ਨਸ ਬਣਦੀਆਂ ਅਗੇਂਸਟ ਨੈਪੋਲੀਅਨ। ਪਰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਤੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਭਰਤਾ ਕਿ ਸਭ ਮਰਨ ਮਰਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਰੀ ਆਰਮੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਏਬਲ ਬੋਡੀਡ ਮੈਨ ਹੈ ਸਭ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਕਤਲੇਆਮ ਮਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬਲੋਕੇਡ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪਣਾ ਬਲੋਕੇਡ ਲਾਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਦੂਜਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਅਲਸਰ। ਸਪੈਨਿਸ਼ ਅਲਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਭਤੀਜਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਸਪੇਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਏਗਾ। तो जो स्पेन का राजा है वो कौन है? फ्रांस के राजे का कोई रिश्तेदार। क्योंकि हुण फ्रांस दे विच तां नैपोलीअन राज कर रहा है तो इन्हें अपने भरा जोसफ नूं स्पेन का राजा बनाता धक्के नाल ही। ठीक है, फोर्सफुली। इहदे खिलाफ स्पेन के लोगों ने सिविल वॉर शुरू करती। जदों नैपोलीअन ने सिविल वॉर नूं दबाउण की कोशिश की, ਉਹਦੇ हथों निकल गई। उत्थे ब्रिटेन ने भी स्पेन की हैल्प करती तो नैपोलीअन वास्ते बहुत वड्डी प्रॉब्लम बन गई। अल्टीमेटली यही प्रॉब्लम नैपोलीअन के डिकलाइन का कारण बनी। इसलिए कहते हैं नैपोलीअन डाइड ऑफ स्पैनिश अल्सर। तो एक आप थोड़ा कॉन्टीनेंटल सिस्टम पढ़ लाँगे, एक आप स्पैनिश अल्सर की गल पढ़ लाँगे, एक नैपोलीअन ने कई तरह के रिफॉर्म्स किए, थोड़ा वो पढ़ लाँगे कि नैपोलीअन ने इकनॉमिक रिफॉर्म्स किए, जिदा कि इन्हें फ्रांस का नैशनल बैंक बनवाता, इन्हें एजुकेशनल रिफॉर्म्स किए, इन्हें नवे तरह के स्कूल बनाते लीस नाम के। ठीक है, और इसी तरह इन्हें उत्थे इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन की तैयारी शुरू कराती फ्रांस के विच, जबकि इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन ब्रिटेन तो शुरू हो चुका है 1750-60 के विच, पर हुण इन्हें नैपोलीअन ने 1800 के आंदे आंदे फ्रांस के विच भी जिहड़ा इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन है उसकी तैयारी शुरू कराती। ठीक है, फिर इन्हें जुडिशियल रिफॉर्म किए, जिहड़े जुडिशियल रिफॉर्म सी रूल ऑफ लॉ जिहड़ा आइडिया ना, ये नैपोलीअन ने इंप्लीमेंट कराया रूल ऑफ लॉ। ठीक है, सो हौली हौली नैपोलीअन ने बहुत अच्छे रिफॉर्म भी किए अपने देश के विच, थोड़ा आप उहदे बारे पढ़ दांगे। फिर नैपोलीअन जिहड़ा है एक पूरे यूरोप नूं जित गया। जदों नैपोलीअन ने पूरा यूरोप जितया तो इन्हें जिहड़ी इटली वाली टैरीटरी है वो भी जित ली, जिहड़ी जर्मनी वाली टैरीटरी है वो भी जित ली। इटली और जर्मनी नूं हराउण वास्ते इनू जितण वास्ते इनू ऑस्ट्रिया नूं हराना पिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया जिहड़ा सी वो इटली ते जर्मनी दे उपर काफ़ी ज़्यादा पावर रखदा सी। ये जिहड़ा साउथ ऑफ जर्मनी है, साउथ ऑफ जर्मनी ते नॉर्थ ऑफ इटली जिहड़ा है वो ऑस्ट्रिया दे कंट्रोल सीगा। ते नैपोलीअन ने ऑस्ट्रिया नूं हरा के इटली और जर्मनी वाली टैरीटरी अपने कंट्रोल च कर ली। ठीक है, इहदे लई ना इतिहासकार कल की कहते हैं, नैपोलीअन ने होली रोमन एम्पायर जिहड़ा सीगा ना वो खत्म कराता। कमिंग ऑफ नैपोलीअन ब्रॉट एंड ऑफ होली रोमन एम्पायर, और इन्हें सारी टैरीटरी अपने कंट्रोल च कर ली। स्पेन भी ये कंट्रोल, फ्रांस भी ये कंट्रोल, इटलीज भी ये कोल, जर्मनीज भी ये कोल, काफ़ी ज़्यादा इन्हें एरिया अपने कंट्रोल च कर लिया। बट ब्रिटेन इनू हराने वास्ते पूरा जोर मारदा है। उधरों रशिया भी लग्या होया है। ठीक है, इटली और जर्मनीज भी लगे हुए अपने आप को आज़ाद करान। इधरों स्पेन भी ये खिलाफ हो गया है। तो अल्टीमेटली फ्रांस सेंटर च फसिया होया है, सारे ये लड़ रहे हैं। एंड दैन 1814-15 दे विच
जो नेपोलियन सी वो वाटरलू की लड़ाई विच हार गया, फॉल ऑफ नेपोलियन हो गया। हुण नेपोलियन जदों हारिया तो इनू हरान तो बाद जिहड़े जिते हुए देश हैं जिद्दां कि ब्रिटेन है, रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सारिਆਂ ने मिल के एक मीटिंग तो करनी है ना कि हुण की करना है। तो जिहड़ी मीटिंग बुलाई गई वो मीटिंग बुलाई गई एट वियना, जिहड़ी कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। 1814-15 ਦੇ ਵਿੱਚ ही कांग्रेस ऑफ वियना बुलाई गई, राइट। ਜਿਹੜੇ भी देश ਦੇ ਵਿੱਚ मीटिंग होएगी उसी देश का प्राइम मिनिस्टर या कोई होर ਇਹਦਾ हैड बनेगा। तो वियना का चांसलर सीगा उस टाइम ते प्रिंस मैटरनिच। प्रिंस मैटरनिच ने इत्थे बह के एक नवा सिस्टम बनाया जिन्हों नाम दिता गया मैटरनिच सिस्टम, या बोलिया गया कंसर्ट ऑफ यूरोप। ठीक है, मैटरनिच सिस्टम या कंसर्ट ऑफ यूरोप। ये सीगा की ये सी एंटी नैशनलिज्म, एंटी लिबर्टी, एंटी डेमोक्रेसी। ठीक है, एंटी नैशनलिज्म, एंटी लिबर्टी, एंटी डेमोक्रेसी। लोगों को ज़्यादा आज़ादी ना दी जाए, डेमोक्रेटिक सरकारां ना बनाई जान, तो कोई नैशनलिज्म की फीलिंग ना होए, ताकि यूरोप जिद्दां फ्रेंच रेवोल्यूशन तो पहले सी बिल्कुल उदा ही रीइस्टैबलिश करता जाए। नेपोलियन ने जो निया टैरीटरीज जित्तियां उस तो सारियां खो के पुराने राजियां नूं देतियां जान। जिहड़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन ने आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी दिता है वो खत्म करो, जिथे जिहड़ा राजा राज कर रहा उन्होंने दोबारा गद्दी ते बिठा दो। लोकी जिहड़ी आज़ादी का शोर पा रहे हैं लिबर्टी का, इनू खत्म करो, दोबारा राजियां नूं अथॉरिटेटिव पावर दे दो। तो जिहड़े जर्मनी ते इटली के लोग कह रहे हैं साडा अपना एक देश होना चाहिए, एक इटली नाम का देश, एक जर्मनी नाम का देश। इस टाइम ते इटली कई पार्ट्स च डिवाइडेड है, जर्मनी भी कई पार्ट्स च डिवाइडेड है। वो चाहते हैं कि साडी नैशनल यूनीफिकेशन होए, बट जिहड़ा मैटरनिच है उन्हें नहीं होने दी, एंटी नैशनलिज्म की फीलिंग नूं प्रोमीनेंट करके। सो ये कंसर्ट ऑफ यूरोप जिहड़ा बनया ये 1848 तक चलेगा, जब तक मैटरनिच खुद गद्दी ते बैठा होया। सो इस तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म होया, मैटरनिच सिस्टम शुरू हो गया जो 1815 तो लैके 1848 तक चलिया। बट हुण होया कि मैटरनिच सिस्टम बनता गया, बट इस मैटरनिच सिस्टम ने लोगों नूं जो लिबर्टी का शौक पै गया सी, जो उन्होंने एनलाइटनमेंट हो गई है, जो उन्होंने डेमोक्रेटिक आइडियाज़ के बारे पता लग गया, उन्होंने चीज़ों नहीं खत्म कर सकता कोई भी। पीपल विल स्टिल मेक एफर्ट्स फॉर द सेम। इसका रिजल्ट की होया 1830 ते 1848 दे विच फिर तो यूरोपीयन रेवोल्यूशनस हो गए। यूरोपीयन रेवोल्यूशनस 1830 वाला जिहड़ा इनू कहते हैं जुलाई रेवोल्यूशन, 1848 वाले इनू कहते हैं फैबररी रेवोल्यूशन। दोनों वारी रेवोल्यूशन फ्रांस तो ही स्टार्ट होंगे हैं। ठीक है, दोनों वारी फ्रांस तो स्टार्ट होंगे हैं। जदों मैटरनिच ने 1815 दे विच अपना सिस्टम शुरू किया, उन्हें फ्रांस दे विच लुई 18 नूं गद्दी ते बिठाता। लुई 16वां सी जिहदा सिर वड्डिया गया सीगा, लुई 17वां विचों बेचारा गवाच गया, लुई 18वां राजा बन गया। हुण जदों लुई 18 राजा बनया, उन्हें तो चलो किसी तरह औखे सौखे टाइम कढ़िया। इहदे जान तो बाद चार्ल्स 10 राजा बन गया। जदों चार्ल्स 10 राजा बनया, वो कहता है जो लुई 16वें की पावर सी या लुई 14वें की पावर सी, जदों राजे एब्सोल्यूट पावर रखते सी, मैं ओहो जी पावर लऊँगा और जिहड़े थोड़े बहुते भी डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स होए सब खत्म कर दांगा। जदों उन्हें अपने 4 ऑर्डीनेंसिस पास किए और सारे डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स खत्म करने वास्ते उन्हें की किया कि वोटिंग राइट्स बंद करते जिहड़े थोड़े बहुते लोगों को मिले सीगे, पार्लीमेंट की पावर घट करतियाँ, जदों प्रैस की फ्रीडम खत्म करती, जदों उन्हें इहो जिहे काम किए लोगों ने रिवोल्ट करता। ठीक है, जुलाई का महीना 1830 फ्रांस विच फिर तो रिवोल्ट हो गया। जिद्दां ही रिवोल्ट होया ये तो भज गया, कहता जी गलती हो गई, मेरा सुर ना वड्डियो, मैनू जालन दो। चार्ल्स 10 भज गया। ठीक है, हुण इत्थे जिहड़ी डायनेस्टी है ना, जिद्दे लुई 14वां लुई 15वां, ये है बर्बन डायनेस्टी। बर्बन डायनेस्टी का रूल हो गया खत्म। हुण इत्थे आ गए ऑरलेंस, अगली डायनेस्टी आ गई। इदां कह लो कि लोधी चले गए तो लोधी जान तो बाद मुगल आ गए, राइट। सो बर्बन्स चले गए, ऑरलेंस आ गए। अगला राजा बन गया लुई फिलिप।
ठीक है। लुई फिलिप अगला राजा बन गया। हुण इन्हें थोड़ी देर वास्ते तो लोगों को कहा भी कोई गल नहीं, थोड़े रिफॉर्म्स कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ले आते हैं, एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म कर देंगे हैं, राइट। सो थोड़ा जिहा फ्रांस उधर गया, बट नाल दी नाल पूरे यूरोप के देशों के रिवोल्ट हो गए कि साडे वास्ते भी सुधार करो। तो यूरोप के कई देशों के सुधार होए, बट क्योंकि हले मैटरनिच खुद ऑस्ट्रिया च बैठा है, उन्हें कई रिवोल्ट क्रश भी करते। जर्मनी च रिवोल्ट होए उन्हें क्रश करते, पोलैंड च रिवोल्ट होए उन्हें क्रश करते। तो बड़े तरीके नाल उन्हें सिस्टम मैनेज कर लिया कुछ टाइम ली। फिर जदों 1848 आया फरवरी का महीना, फ्रांस के जड़े वर्किंग क्लास है वो बड़ी दुखी है। फ्रांस की वर्किंग क्लास बहुत ही दुखी है, राइट। लिबरलिज्म नाल जुड़ती है जिहड़ी क्लास, वो हुंदी है कैपिटलिस्ट क्लास। मिडल क्लास जिहड़ी है वो कैपिटलिस्ट क्लास है, ठीक है। सो 1830 वाले रेवोल्यूशन जिहड़े हैं वो लिबरलिज्म की सक्सैसफुल बनाते हैं। जदों 1848 रेवोल्यूशन आए, ये वर्किंग क्लास ने किए हैं। 1848 कार्ल मार्क्स की किताब भी आ गई सी, कम्युनिस्ट मैनीफेस्टो, ठीक है। हुण वर्किंग क्लास जिहड़ी है वो रेवोल्यूशन लैके आंदी है तो सोशलिज्म आ जाता है। वर्किंग क्लास की आइडियोलॉजी है सोशलिज्म, ठीक है। ये फिर फ्रांस तो शुरू हुआ। वर्किंग क्लास ने अपने लिए राइट्स मंग ले कि सानू तो राइट टू वोट मिलिया ही नहीं, तुसीं तो अमीरां नूं देता, आम जनता नूं तो राइट टू वोट मिलिया ही नहीं। हुण फ्रांस की वर्किंग क्लास ने रिवोल्ट किया 1848 इत्थे, फिर तो जदों लड़ाई पई पूरे यूरोप च रिवोल्ट हो गए। और मार्च दे विच अगले ही महीने लोगों ने मैटरनिच के खिलाफ ऑस्ट्रिया च भी रिवोल्ट करता। मैटरनिच भी भज गया ब्रिटेन लई, ठीक है। मैटरनिच ऑस्ट्रिया तो ब्रिटेन चला गया, मैटरनिच ही गिर गया तो मैटरनिच सिस्टम ही खत्म हो गया, राइट। जो 1815 च असी मैटरनिच सिस्टम बनाया, अज वो खत्म हो गया। हुण यूरोप फिर बदलेगा। हुण जदों यूरोप बदलेगा तो नैशनलिज्म नूं जिन्हों दबाण वास्ते मैटरनिच ने पूरा सिस्टम बनाया सी, वो हुण जिहड़ी चीज़ है वो हौली हौली हुण खत्म होएगी तो नैशनलिज्म की फीलिंग फिर तो स्ट्रोंग हो जाएगी। हुण जब नैशनलिज्म की फीलिंग हुई स्ट्रोंग तो दो अगले ईवेंट होए 1860 ते 1870 दे विच। 1860 दे विच हुई इटैलीयन यूनीफिकेशन, इटली एक देश बनया, इटैलीयन यूनीफिकेशन। 1870 दे विच हुई फिर जर्मन यूनीफिकेशन, ठीक है। इटैलीयन यूनीफिकेशन एंड जर्मन यूनीफिकेशन। इटैलीयन यूनीफिकेशन के 3 मेन करैक्टर्स हैं। सब तो पहले है मजीनी, फिर है गैरीबाल्डी और उस तो बाद है कैवर। बट जर्मनी का इको आदमी है बिस्मार्क, जिन्हों कहते हैं आयरन चैंसलर, राइट। आयरन चैंसलर। जिहड़ा मजीनी है, मजीनी नूं बोलिया जाता है सोल, आत्मा, सोल ऑफ इटैलियन यूनीफिकेशन, सोल ऑफ इटैलियन यूनीफिकेशन, ठीक है। गैरीबाल्डी नूं कहते हैं तलवार, स्वॉर्ड ऑफ यूनीफिकेशन। कैवर नूं बोलते हैं ब्रेन ऑफ यूनीफिकेशन। ये है आत्मा, ये है तलवार ते ये है दिमाग, राइट। सोल, स्वॉर्ड एंड ब्रेन ऑफ इटैलियन यूनीफिकेशन। मजीनी ने यंग इटली नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिहड़ी इटली की नैशनलिज्म नूं इंस्पायर करेगी। गैरीबाल्डी लड़ाइयाँ लड़के इटली नूं यूनीफाई करेगा, पर्टिकुलरली साउथ इटली नूं, जो मैं तुहानूं अगले लैक्चर च डिटेल च दसांगा। ते कैवूर ने पूरी डिप्लोमेसी के थ्रू इटली की फाइनली यूनीफिकेशन कराई तो यूनाइटिड इटली का पहला प्राइम मिनिस्टर भी कैवूर ही बनया, ठीक है। बिस्मार्क ने तो रियल पॉलिटिक के थ्रू लड़ाइयाँ लड़के जर्मनी एक देश बनाया। और इस तो अगे की स्टोरी हुण तुहानूं मैं तीजे लैक्चर सुनावांगा। पहले असी इत्थे तक दे हुण जो असी अज मैक्रो एनालिसिस कीते हैं, इन्हां दे हुण माइक्रो एनालिसिस करांगे। एक इवेंट दे विच किहड़े राइटर्स के नाम इंपॉर्टेंट हैं, या किहड़ी परसनैलिटीज़ इंपॉर्टेंट हैं, किहड़ियां बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, किहड़ियां स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इन्हां दे अंदर किहड़े इवेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। हुण अगले एक लैक्चर तुहानूं मैं वो करावांगा कल की क्लास। अज तुसीं हुण ये समझ लो स्टोरी लाइन, राइट। और ये जो तुहानूं असीं अपनी मॉडर्न इंडिया की बुक के पिछे एक टेबल बना के दिता है 10 पेज का वर्ल्ड हिस्टरी का, बस उन्होंने नाल देखी जाना, तुहाडे सारे डाउट क्लीयर हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम होएगी दैन यू कैन एक्सैस अस, जिन्हों को साडा फोन नंबर है ग्रेट,
नहीं तो तुसी इत्थे कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है जी, आई होप इस ढंग नाल पढ़ाई गई हिस्टरी तुहानूं चंगे समय तक याद भी रहूगी, तुहानूं लॉजिक्स भी पता होणगे ते तुसी वधिया ढंग नाल अपने आंसरस जिहड़े हैं वो आइडेंटिफाई कर लोगे। डन। सो वर्ल्ड हिस्टरी 3 या 4 लैक्चरस दे विच मुका के असीं तुहाडी ये टेंशन दूर करांगे। गॉड ब्लैस यू, टेक केयर, अगले लैक्चर च मिलते हैं, बाय बाय।